Good morning, students. How are you all? I hope you all will fine. Today we will start our topic, that is size of workforce in India. Before we will take a quick revision about this topic, that is participation rate. When we talk about the participation rate, what does it mean? It means how many people are actually engaged in the process of production. How many people are do in the value of addition process. That is known as your participation rate. Participation basically participate कर रहे हैं. किस चीज में participate कर रहे हैं? They are taking participation in the production process. They are taking participation in the value addition. In this, how many students, how many people, are actually working? How many people are considered as an workforce? Because workforce are actually those who are actually working. In this we are not considered those people who are willing to work. We are considered only those people who are actually working. Clear? So participation is a proportion ratio of population that is actively engaged in the production process, that is actively engaged in the value addition. Clear? So how you will find out the participation rate? Because in which we are studying about those who are actually working. That's why we will take total workforce, not labor force. Because in labor force, who are willing to work and actually working, both are considered. But in the workforce, only those people are considered who are actually working. So total workforce divided by total population. How many people are in the country? This is known as number of people, is known as your population into 100, because you are doing your participation rate, you are writing out, find out the proportions rate. So next, when we talk about workforce, how you will find out workforce? When you are dividing, when you are subtract from the labor force those people who are willing to work, because right now they are not considered as an employed person. Right now they are considered as in those who are willing to work. So number of person not working but are willing to work, you can subtract these from labor force, you can easily find out your workforce. Because in workforce, actually those people are considered who are actually working position. So in labor force, you are subtract those number of person not working but are willing to work, number of person. Clear? So basically these are those person who are willing to work. Right now we are considered as in those person who are in the unemployment situation. Clear? So number of person unemployed. So how you will find out number of person unemployed? You can subtract labor force by वर्कफोर्स. क्लियर? आप लेबर फोर्स और वर्कफोर्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो पर्सन निकल के आ जाएंगे जो पर्सन अभी राइट नाउ दे आर कंसीडर्ड एज एन अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, जो अभी बेरोजगार है. बिकॉज बेरोजगार हम उन पर्सन को बोल रहे हैं हु आर विलिंग टू वर्क, वो काम करना चाहते हैं बट राइट नाउ दे डू नॉट हैव इन द पोजीशन ऑफ वर्किंग, उनके पास काम नहीं है. तो बेसिकली लेबर फोर्स में से अगर वर्क फोर्स घटा दोगे तो वो पर्सन निकल के आ जाएंगे जो विलिंग टू वर्क है, काम करना चाहते हैं बट काम नहीं है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? बेरोजगार. क्लियर? सो नेक्स्ट, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. हाउ यू विल फाइंड आउट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? नंबर ऑफ पीपल इन द कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, which we say that number of person unemployment, वो लोग जो बेरोजगार है, divided by size of labor force. Why we are taking size of labor force? Because here we are find out those people who are unemployment category, who are those people who are as in willing to work but not actually working. लेबर फोर्स में तो वो दोनों ही लोग शामिल थे जो काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं, और यहाँ हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? उन लोगों को जो काम करना चाहते हैं बट अभी वो बेरोजगार है. इसीलिए हमने यहाँ किस साइज का वर्कफोर्स लिया, किस साइज का फोर्स लिया? दैट इज योर लेबर फोर्स, नॉट वर्कफोर्स. क्योंकि वर्कफोर्स को तो हम इसमें करेंगे पार्टिसिपेशन रेट में. पार्टिसिपेशन रेट जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम. So with this formula you can find out the rate of unemployment. Number of person unemployment divided by size of labor force, वो लोग जो एक्चुअल में काम करना चाहते हैं और काम भी है, into में 100. From this you can easily find out your rate of unemployment. और now how you will find out participation rate? That is total workforce divided में total population into में 100. So these are the formulas which comes under the chapter that is your employment. So your next topic is why do people work and why should we study about working people? लोग काम क्यों करते हैं?
बेसिकली लोग काम करते हैं इनकम जनरेट करने के लिए. दे वांट टू स्टैंड देयर, they want to improve their standard of living, or they want to improve their quality of life. Because of these, people are working so that they can't depend on another person for their essential goods. Clear? They are working, they want to live a peaceful life. For this, money is very important concept. So for generating this money, for generating this income, they people are doing work. And next is why we study about working people. Because we are studying about working people only because the working people are only one who contribute in our GDP, who contribute in increasing our national income. So that's why we are taking only those people, because they are working, they are participating in the process of production, they are participating in the value addition. So that's why we are taking those people who are actually engaged in the process of production, who are actually working. That's why we are taking only these people who are, we study about the working people only, because they are those people who are help in generating the incomes, who are help in contribution the GDP, who are help in increasing the national income. Clear? So 3 factor explain why do people cut. भाई लोग काम कर रहे हैं कमाने के लिए, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ. सो फर्स्ट पीपल वर्क टू अर्न अ लिविंग. ऑफ कोर्स लोग कमा रहे हैं रहने के लिए. दे वांट टू इंप्रूव देयर लाइफ, दे वांट टू इंक्रीज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दे वांट टू इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. बिकॉज ऑफ दीज पीपल आर वर्किंग. So first people work to earn living. कमान रहने के लिए कमाना is a mandatory concept. That's why people doing work. It is essential for existence. ये म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी का है कि आप किसी दूसरे पर्सन पे डिपेंड ही नहीं हो रहे किसी फैक्टर के लिए. ठीक है, तो इसके लिए कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक पॉइंट के बाद बोरोइंग कितना कर लोगे और कौन पर्सन आपको बोरो करके देगा, कौन पर्सन आपको पैसा देगा. फॉर ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू बी अर्न so that you can live a peaceful life, so that you can generate a good life. So it is an essential for existence, और it is an important process. survive करने के लिए, existence के लिए कमाना बहुत जरूरी है. So it is an essential for existence in a system of mutual interdependency. और mutual interdependency का level यहाँ हम किस basis पे कर रहे हैं कि if I am a producer, I am depend on the consumer for selling my product, and as a consumer is also dependent on the producer for their want satisfaction. Clear? If I am a teacher, so I am dependent on the students for my work, and as same students also dependent to teacher for taking the knowledge, for taking a good learning, or for taking a गुड स्किल्स. सो क्लियर, इन सब के लिए ये म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी होती है. जैसे कंज्यूमर प्रोड्यूसर पे है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर पे है, टीचर स्टूडेंट पे है, स्टूडेंट टीचर पे है, और सेम ऐसे डॉक्टर किस पर डिपेंडेंट है, पेशेंट पे, पेशेंट डॉक्टर पे है. यू कैन टेक मोर एग्जांपल लाइक फार्मर इज डिपेंडेंट ऑन देयर क्रॉप्स, फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि वहां से उन्हें क्या है, इनकम जनरेट हो गया. अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए काम करना जरूरी है. That's why we are taking only these people who are actually working. So employment infuses in such a sense of self-esteem. रोजगार होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, सेल्फ इंस्टीम होगा, एक बैलेंस आएगी लाइफ के अंदर. आप इजिली सर्वाइव कर पाओगे बिना किसी दूसरे पर्सन से डिपेंड होंगे फॉर देयर एसेंशियल गुड्स. क्लियर? सो एंड ब्रिंग टू द फोर आउट सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ. अगर पैसा होगा, सॉरी, अगर रोजगार होगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हमें खुद की अपनी वैल्यू पता होगी. वी हैव सम वर्थ बिकॉज वी हैव मनी फॉर द सर्वाइवल. हमें किसी दूसरे पर्सन पे डिपेंड नहीं होना पड़ रहा अपनी एसेंशियल गुड्स के लिए, अपनी डेली की नीड्स के लिए. हमारे पास इतना पैसा है कि हम उतना कमाओ. अगर अर्निंग है ना, सो वी हैव सम वैल्यू ऑल्सो. अगर हम देश की बात करें, इन द कंट्री, इफ यू आर हैविंग गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, देन ओनली यू कैन सर्वाइव. Because with the help of employment opportunity, you are generating the income, and with the only money is an important factor for the survival, for their social status. Money is considered as an important concept. अगर हम पैसे की बात करें ना आज के टाइम पे,
पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ को पीसफुल बनाने में हेल्प करेगा। सो वो पैसा तब ही आ सकता है जब आपके पास एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, और उसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए एक गुड एजुकेशन इज एन बेसिक कंसेप्ट, एजुकेशन होना। तो अगर इंसान की अपनी वर्थ पता करनी है कि आपकी कितनी वैल्यू है, सेल्फ वैल्यू, तो उसके लिए काम करना बहुत जरूरी है। सो इट हेल्प इन द सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, वर्थ हियर मींस द वैल्यू। सेकेंड, व्हेन वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी, ऑफ कोर्स अगर रोजगार होगा तो वो जीडीपी की नेशन को कंट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा, नेशनल इनकम को राइज करने में हेल्प करेगा। क्लियर? एंड कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, अगर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जीडीपी में, गिव्स अ सेंस ऑफ ग्लोबल प्राइड, और देश के लिए भी, हमारे लिए भी देश के लिए एक प्राइड है, क्योंकि हम एज एन इंडियन सिटीजन हम क्या चाहेंगे, हमारे देश बहुत डेवलप हो, और उस डेवलप में अगर हम अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाय डूइंग एनीथिंग, सो इट्स अ लाइक अ प्राइड नेशन, और इट्स लाइक अ प्राइड मोमेंट फॉर आवर सेल्फ ऑल्सो। क्लियर? क्योंकि हम जीडीपी को कंट्रीब्यूट में कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उससे इनकम जनरेट हो रही है। अगर देश में भी ग्रोथ हो रही है तो पैसा आने के साथ साथ देश की भी ग्रोथ हो रही है, तो बेसिकली ये इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है। सो ग्लोबल प्राइड है, बिकॉज ग्रोथ ऑफ जीडीपी इम्प्लाई, अगर जीडीपी ग्रो होता है तो नेशन की ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी, क्योंकि वो कंट्री है जिसपे आप कंपनी में काम कर रहे हो, वो है तो कहाँ पे, इंडिया पे ही बनी हुई है, ऑटोमेटिकली उस कंपनी की ग्रो होगी तो देश की भी ग्रोथ होगी। तो इट्स लाइक एन प्राउड मोमेंट फॉर द कंट्री एंड फॉर आवर सेल्फ ऑल्सो। फोर फैक्टर एक्सप्लेन, अब ये 4 फैक्टर है जो एक्सप्लेन करते हैं व्हाई स्टडिंग अबाउट वर्किंग पीपल, या क्यों हम कर रहे हैं रोजगार, क्योंकि रोजगार वाले ही लोग हैं जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो नेशनल इनकम को राइज करने में हेल्प कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दोस पीपल ओनली। So significant, studying about employment offer insight to the quality and quantity of human resources. हम इंसान को कैसे वर्क करा पा रहे हैं, and we are taking human as a resources because human having some value also. ये ह्यूमन ही है, ह्यूमन की स्किल्स ही है जो यूज होगी, और जो आगे जाके अगर कोई मशीन भी ऑपरेट कर रहा है, एक ह्यूमन बीइंग के पास स्किल्स होगी तो वो इजिली मशीन ऑपरेट कर पाएगा अच्छे से। तो इट हेल्प इन द जीडीपी ग्रोथ। क्लियर? सो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ह्यूमन रिसोर्स की इंक्रीज होगी, और ह्यूमन कैपिटल जो कि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकेंड, व्हेन वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट स्टडी हेल्प एनालाइज द सिग्निफिकेंस, ये तीनों ही सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, तीनों ही सेक्टर के अंदर अगर रोजगार है तो इस सेक्टर की ग्रो करने में वी आर हेल्पफुल फॉर this growth. So primary, secondary, tertiary sector in the growth of country. We come to know which sector which employs so much and contribute how much. अब हम देखते हैं कि कौन सा सेक्टर है जो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और क्या क्या है। हम अगर वर्किंग पीपल्स की बात करते हैं, some more components are there. It help analyze many social issues. अगर पढ़े लिखे हैं तो वो सोसाइटी में कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कुछ इश्यूज हो रहे हैं, उस पर भी वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे पाएंगे। वो पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उन्हें पढ़ा लिखा होना प्लस अच्छा रोजगार होना जरूरी है। तो सोशल इश्यू और उस वर्कर के लिए क्या एक सोशल सिक्योरिटी भी बनी रहेगी, और अगर सोशल सिक्योरिटी होगी, पढ़ा लिखा इंसान होगा, रोजगार होगा, तो वो इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचेगा, वो इन्वायरमेंट को हार्म करने के लिए नहीं वर्क करेगा। सो वर्क इन्वायरमेंट, एक्सप्लोटेशन ऑफ वर्कर, वो ये भी चेक सोशल इश्यूज जो हो रहे हैं उन पर बात कर पाएंगे, अच्छा रोजगार होगा। और वो सोशल इश्यूज या वर्कर की बात कर रहे हैं कि वर्कर की सिक्योरिटी होना जरूरी है, जिस इन्वायरमेंट में वर्कर काम कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट उनके लिए कंफर्ट लेवल दे। इट ऑफर इनपुट्स फॉर मैन पावर प्लानिंग। अगर वर्किंग पीपल की बात होगी तो मैन पावर, इंसान को कैसे वर्क कराना है या कैसे प्लानिंग होनी चाहिए, इफ वी हैव अ गुड इनपुट दैट ओनली वी कैन फाइंड आउट अ गुड आउटपुट। सो बेसिकली these things are mandatory, and that's why we are taking only working people and we are studying only working people, because these working people help in the improving the quality of life, help in contribution in our GDP, and they also analyze some social issues which come in any type of company like a working environment, social securities of the worker. क्लियर? अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट, वो अगर रोजगार वाला बंदा होगा, पढ़ा लिखा बंदा होगा, तो वो अच्छे से रिसोर्सेज को एनालाइज कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा रोजगार।
वी कैन प्लान फॉर आवर फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑल्सो, कि फ्यूचर के लिए रिसोर्सिस को या मैन पावर को हर सेक्टर के लिए, वेदर इट इज प्राइमरी, वेदर इट इज सेकेंडरी, वेदर इट इज टेरिटरी सेक्टर में, कैसे हम ह्यूमन बीइंग को अच्छे से प्लान कर सकते हैं, कैसे हम उनकी स्किल्स को यूज कर सकते हैं, ये सब वो ही पर्सन कर पाएगा हु आर एक्चुअली डूइंग द वर्क, हु आर कंसिडर इन एन एम्प्लॉयमेंट. Clear? So next topic is, which is the main topic of our today's lecture, that is size of workforce in India. कि एक्चुअल में भारत के अंदर कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं. Workforce are those people, and in workforce we are taking those people who are actually working. We are not taking those people who are willing to work. Here we are talking about those people who are genuinely and actually working. So India is a workforce of nearly how many millions of persons? How many persons are there? That is 471 millions of people. Clear? क्यों कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कितने पीपल्स की बात करें. इंडिया इज ए वर्कफोर्स ऑफ, इतने लोग काम पर लगे हुए हैं, बिकॉज वर्कफोर्स आर दोज who are actually working. And how many persons are there? There it is 471 millions of persons. Clear? So next we will study step by step about it. So about 77% of workforce comprises, जिसमें से 77% जो out of 100 कौन लोग हैं वो मेल वर्कर्स हैं, because they are actually working as compared to female. अगर आज भी देखिए ना, जेंडर बायस है और वो एक पॉइंट तक रहेगा भी, क्योंकि वो सोसाइटी का सोच ही इस तरीके से है कि भाई मेल और फीमेल में अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज के चांसेस दे, अगर प्रायोरिटी लिस्ट पे देखें, राइट नाउ हु आर टेकिंग इन द प्रायोरिटी लिस्ट, दैट इज मेल ओनली. तो इसीलिए यहाँ भी अगर रेशियो देखें, आउट ऑफ 100 77% तो वो है वर्कफोर्स जो मेल वर्कर है, और उसमें से 23% है जो फीमेल वर्कर है. काम वो भी कर रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस में देखें, अगर हम यहाँ इक्वालिटी की बात करें, तो हियर मेल वर्कर्स आर मोर एज कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि आज भी बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल थिंकिंग ऑफ द पीपल राइट नाउ, दे आर गिव प्रायोरिटी टू द पीपल्स to whom people, male people as compared to female. So only 23% are female worker. और मेल और फीमेल में यहाँ पे किसको भी इन्वॉल्व कर रहा है, चाइल्ड लेबर को भी इन्वॉल्व, चाइल्ड लेबर ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्सेस, वेदर इट इज मेल और फीमेल. बच्चों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मेल और फीमेल में. उन बच्चों में लड़कियां भी काम कर रही हो, चाहे छोटे बच्चे, छोटी लड़कियां या बड़े छोटी लड़के भी काम कर रहे हो, तो यहाँ दोनों ही जेंडर की बात की गई है. तो सेकंड पॉइंट से कि फर्स्ट हम कह सकते हैं कितने लोग काम कर रहे हैं, पर्सन्स, दैट इज 471 millions of persons are there whose as the size of workforce, and workforce are those who are actually working. In which second we have done about how many workforce comprises according to the ratio, 77% of male, 23% of female, and in 23 and 77 it involves the child labor also, बच्चे भी है, और वो बच्चे में लड़की भी और लड़का दोनों, ठीक है, because here we are respective sexes means both, there are both genders we are including. फीमेल वर्कर, मेल और फीमेल वर्कर के अंदर ही वो इन्वॉल्व हो रहे हैं जो चाइल्ड लेबर भी है, बच्चे भी काम करें, क्योंकि इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, तो उनको एजुकेशन की वजह देने की बजाय जो लोग बहुत गरीब है वो छोटे बच्चों को काम भी करा रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग. चाइल्ड लेबर इज नॉट अ गुड साइन फॉर आवर कंट्री. नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट नियरली 75%, 75% क्या हो गया, मतलब आपका 3/4 हो गया वर्कफोर्स इज फाउंडेड. आउट ऑफ 100 75% वर्कफोर्स किसके अंदर है, ज्यादा काम करने वाले लोग रूरल एरिया में. क्या इसका मतलब ये है अगर वो रूरल एरिया में काम करने वाले लोग हैं तो वो ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? नहीं, इट डजंट मीन दिस कि जीडीपी में वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करे. इसीलिए वहां पर वर्कफोर्स ज्यादा है रूरल एरिया में, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है बच्चों को एजुकेशन देने का, तो उन्हें बेसिकली काम करना पड़ता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ मनी. और फॉर द एसेंशियल गुड्स, फॉर द बेसिक सर्वाइवल नीड्स, they have to do the work, in which if they are doing more as compared to urban area, it doesn't mean they are doing more contribute in the GDP sector. No, they do not have enough money to send their children to the schools. That's why these people are doing more work. So 3/4 यानी 70% वर्कफोर्स रूरल एरिया में है, और अर्बन एरिया में कितना है 25%. 25% मीन्स 1/4. 3/4 ऑफ पीपल्स, 75% पीपल वर्कफोर्स किसके अंदर पाए जाते हैं, रूरल एरिया में. इट डजंट मीन्स दे आर कंट्रीब्यूटिंग मोर इन द मोर एज कंपेयर टू अर्बन सेक्टर. दे डू नॉट हैव मनी, दैट्स व्हाई
they are doing work because they are compelled for it. वो मजबूर है ये काम करने के लिए. नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल वर्कफोर्स, अगर अब हम फीमेल की बात करें, आउट ऑफ टोटल रूरल एरिया में कितना परसेंट है? 1/4 है. अभी पहले हमने क्या बात करी, अब यहाँ इस पॉइंट पे तो ये हमने कंपेयर किया रूरल और अर्बन को, ठीक है. रूरल एरिया में 75% है वर्कफोर्स, अर्बन में कितना है? 25%. अब हम रूरल में किसकी बात कर रहे हैं? मेल और फीमेल की रेशियो की. फीमेल वर्कफोर्स है ना, जितना भी टोटल किया रूरल एरिया में, अब 75 में से परसेंटेज में 25% यानी 1/4 कौन है रूरल एरिया में? या हमने रूरल अर्बन का कंपेयर किया, अब यहाँ मेल और फीमेल का कंपेयर कर रहे हैं कि आउट ऑफ 75% 25% मीन्स 1/4 जो कौन से है रूरल एरिया में, वो है फीमेल वर्कर. 1/4 of total workforce, while only 20% यानी 1/5 of total workforce in the urban area. अब यहाँ 20%, क्योंकि यहाँ तो 25 था अर्बन का, अब उसमें 20% किसकी बात कर रहे हैं? फीमेल की. तो ये थर्ड फोर्थ पॉइंट आपका किससे रिलेट करता है? फीमेल वर्कर से. और अगर अब भी हम कंपेयर करें मेल और फीमेल का, मेल आर मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग द वर्कफोर्स बिकॉज प्रायोरिटी अभी भी क्या है? अगर 2 पर्सन्स है तो जॉब पे किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे? एक घर में 2 बच्चे हैं, लड़का है लड़की है, तो लड़कियों की क्या है? अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती तो लड़कियों की शादी कर देते हैं, क्योंकि वो उनका ये डिसीजन आज भी फैमिली पे डिपेंड होता है मैरिज का, एज कम्पेयर टू दैट वन इंडिविजुअल जिसको शादी करनी है. मोस्ट ऑफ द इंडियंस की अगर हम बात करें तो भी लड़की क्या मैरिज डिसीजन लड़की पर नहीं है, वो किस पर डिपेंडेंट है? फैमिली पर है. जबकि होना किस पे चाहिए? लड़की के, क्योंकि लाइफ उसको बतानी है ऑफकोर्स दूसरे घर में, तो उसका डिसीजन के कंपेयर में आज भी प्रायोरिटी किसके डिसीजन है पे होती है? फैमिली डिसीजन पे. और मेल के लिए तो कंपील हो जाता है, उसे काम करना ही करना है. ठीक है, ये हमने रेशोज किया किसका? फीमेल का. इन दिस वन मोर क्वेश्चन अराइज कि व्हाट डू दीज फैक्ट, अब ये फैक्ट रिवील क्या करते हैं? और इन्हीं फैक्टर से 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं. वाई इज द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स रूरल बेस्ड? क्यों ज्यादा काम करने वाले लोग रूरल बेस्ड पे है? इसका यही आंसर है क्योंकि वहां पर उनके पास इतना पैसा नहीं है कि एजुकेशन दे सके. सेकेंड, वाई द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर? क्यों आज भी परसेंटेज फीमेल वर्कर की कम हो रही है एंड लोअर स्टिल एज कंपेयर टू अर्बन, एंड और लोअर हो रही है अर्बन एरिया के कंपेयर में, क्योंकि आज भी उनका लिया एक इंडिविजुअल पर्सन फीमेल का डिसीजन उसके हाथ में नहीं है, वो भी फैमिली के हाथ में. एंड family, now when we talk about tomorrow we will study about and revealing the answer of these 2 questions. की फर्स्ट इज कि ज्यादातर आज भी रूरल एरिया में लोग क्यों हैं एज कंपेयर टू अर्बन काम करने वाले, और फीमेल वर्कर क्यों कम हो रहे हैं? कम तो है ही, और भी कम हो रहे हैं अर्बन एरियाज में, क्यों? नाउ tomorrow we will study about this. Till you will read all this topic, I hope you like this video. Thank you, have a nice day.